السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ 12 اصیلی ماسٹر سٹوری جو ہے انگلش لینگویج گریڈ 10 کے حوالے سے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کر دیتے ہیں۔ Once there was a rich man named قاسم۔ ایک مرتبہ ایک امیر آدمی جس کا نام قاسم تھا رہا کرتا تھا۔ He had worked hard on his fields۔ اس نے سخت محنت کی تھی اپنے کھیتوں پر۔ And Allah had given him، اور اللہ نے اسے دے رکھا تھا a lot of wealth، بہت سارا دولت for his hard work، اپنی محنت کی وجہ سے۔ He had built a house، اس نے ایک گھر بنایا تھا in the city، شہر میں because he wanted، کیونکہ وہ چاہتا تھا his son، کہ اس کے بیٹا and daughter، اور اس کی بیٹی to be well educated، اچھے تعلیم یافتہ ہوں۔ اس نے شہر میں ایک گھر بنایا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اچھے تعلیم یافتہ ہوں۔ His 2 children were very young، اس کے 2 بچے بہت چھوٹے تھے when they moved to the city، جب وہ شہر منتقل ہوئے۔ Qasim's children were so used to city life، قاسم کے بچے شہری زندگی کے اتنے عادی ہو چکے تھے that they never went to the village again، کہ وہ دوبارہ کبھی گاؤں نہیں گئے۔ قاسم earned، قاسم نے کمایا a lot of money، بہت سا پیسہ، بہت سی رقم from his lands، اپنے زمینوں سے۔ but now، لیکن ابھی most of the work، اس کا بہت سارا کام was done، ہوا جاتا تھا، اس کا بہت سارا کام ہوتا تھا by his servants، اس کے ملازموں سے اس کا بہت سارا کام ہوا جاتا تھا، یا وہ اپنا کام کراتا تھا اپنے سرونٹ سے۔ He depended on an old servant، وہ ایک بوڑھے سے منتظم پر یا ملازم پر انحصار کرتا تھا، جمال، جس کا نام جمال تھا for the management of his fields، اپنے کھیتوں کے انتظام کے حوالے سے وہ انحصار کرتا تھا اپنے ایک بوڑھے سے ملازم جمال کے اوپر۔ جمال was very clever، جمال بہت چالاک تھا but his master قاسم was cleverer، لیکن اس کا مالک جس کا نام قاسم تھا وہ ہوشیار تھا، یعنی یہ اس سے بھی کلیور تھا۔ He could tell، کتنا کلیور تھا وہ بتا سکتا تھا، وہ اتنا کلیور تھا کہ وہ بتا سکتا تھا by going round his lands، اپنے کھیتوں کے گرد چکر لگا کر وہ بتا سکتا تھا how much grain his fields are going to produce، کہ اس کے کھیت کتنا اناج پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ اتنا ہوشیار تھا کہ وہ ایک راؤنڈ لگا لیتا تھا اپنی کھیتوں کا، تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کھیت سے کتنے اناج نے پیدا ہو جانا ہے۔ He could easily estimate، وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتا تھا the expected income، متوقع آمدنی کا۔ He gave جمال no chance، اس نے جمال کو کوئی موقع نہیں دیا to deceive him، کہ وہ اس کو دھوکہ دے دے۔ In this way، اس طرح قاسم was earning، قاسم کما رہا تھا a lot، بہت زیادہ without doing anything، بغیر کچھ کیے، اس طرح قاسم بہت کچھ کما رہا تھا۔ Qasim's children were living a comfortable life، قاسم کے بچے ایک آرامدہ زندگی گزار رہے تھے۔ نعیم his son، نعیم جو کہ اس کا بیٹا تھا was simpleton، ایک سادہ لو انسان تھا۔ He never took the trouble of going to the village، he never took the trouble، اس نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی
ऑफ गोइंग टू द विलेज, गाँव जाने की उसने कभी कोई तकलीफ नहीं उठाई। गाँव क्यों जाता वो? टू इंस्पेक्ट द फील्ड्स, के खेतों का मुआयना करे, एंड द क्रॉप्स, और क्रॉप्स का, फसलों का मुआयना करे। एज हिज फादर गेव हिम इनफ मनी फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर एज का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि उसके वालिद ने उसको काफ़ी रकम दी थी अपने ज़ाती अखराजात के लिए, इसलिए वो कभी गाँव जाने की तकलीफ़ नहीं करता था या नहीं उठाता था कि अपने फील्ड्स यानी खेतों का और क्रॉप्स का मुआयना करे, यानी खेतों और फसलों के मुआयने के लिए वो कभी गाँव जाने की तकलीफ़ नहीं करता था, क्योंकि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस, ज़ाती अखराजात के लिए उसका अब्बू उसको हमेशा काफ़ी रकम दे देता था। कासिम्स हैड ग्रोन ओल्ड, कासिम बूढ़ा हो गया, एंड फॉलन इल, और बीमार पड़ गया, एंड सून पास्ड अवे, और जल्द ही इंतकाल कर गए। नईम हैड टू टेक द प्लेस ऑफ हिज फादर, नईम को अपने बाप की जगह लेनी थी। हिज मदर एडवाइज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे मशवरा दिया, टू गो टू द विलेज, के गाँव चला जाए, एंड चेक, और चेक करे, इफ़ एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, कि क्या आया हर चीज़ सही जा रही है, यानी गाँव में जो उसके खेत वगैरह है, खेत के मामलात सही जा रहे हैं। द कॉटन क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, कपास का फसल काटा जा चुका था, एंड सोल्ड, और बेचा जा चुका था। बट जमाल हैड सेंट, लेकिन जमाल ने बेचे थे, देम, उनको, लेसर अमाउंट, कम रकम उनको भेजा था, देन यूजुअल, मामूल से, यानी जमाल ने उनको मामूल से कम रकम भेजा था जब उसके काटन कपास का जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, वो काटे भी जा चुके थे और बेचे भी जा चुके थे, लेकिन उसका अमाउंट जो था उसको कम मिला था। नईम्स मदर वांटेड, नईम की माँ चाहती थी, दैट हर सन शुड पर्सनली इंस्पेक्ट, के उसका बेटा बजाते खुद मुआयना करे, द फील्ड्स, यानी खेतों का, एज हिज फादर यूज टू डू, जैसा कि उसका वालिद किया करता था। नईम डिड नॉट वांट टू गो अवे फ्रॉम द सिटी, नईम शहर से दूर नहीं जाना चाहता था। ही वॉज सो यूज टू द कम्फर्ट्स ऑफ द सिटी लाइफ, वो शहरी ज़िंदगी के आसाइशों का इतना आदी हो चुका था, दैट ही फेल्ट, कि वो महसूस करता था, अनईजी, बेचैनी महसूस करता था, व्हेन ही हैड टू गो टू द विलेज, जब कभी वो गाँव जाता था तो वो बेचैनी महसूस करता था। बट हिज मदर केप्ट ऑन एडवाइजिंग हिम, लेकिन उसकी माँ उसे मशवरा देती रहती थी। सो ही वेंट टू द विलेज, तो वो गाँव चला गया, एंड स्टेड विद हिज मैनेजर, और अपने मुंतजिम के साथ ठहरा रहा, जमाल, जिसका नाम जमाल था। इट वॉज द विंटर सीजन, ये सर्दियों का मौसम था, एंड द इवनिंग्स वर स्पेशली वेरी कोल्ड, और शामें ख़ास कर बहुत ठंडी होती थी। जमाल लिट अ फायर, जमाल ने आग जलाई, इन द रूम, कमरे में, एंड नईम वॉज सिटिंग, और नईम बैठा था, बाई द फायर प्लेस, आतिशदान के साथ। सडनली, अचानक से, ही हेयर्ड, उसने सुना, अ स्ट्रेंज नॉइस, एक अजीब सी आवाज़ या एक अजीब सा शोर। द जेकाल्स वर होलिंग आउटसाइड, गीदड़ बाहर चीख रहे थे। व्हाट्स द नॉइस, ये किस किस्म का, ये कैसा शोर है? आस्क्ड नईम, नईम ने पूछा। इट इज़ द नॉइस ऑफ जेकाल्स, ये गिदड़ों की आवाज़ है। रिप्लाइड जमाल, जमाल ने जवाब दिया। दे आर सिटिंग आउटसाइड एंड हाउलिंग, वो बाहर बैठे हैं और चीख रहे हैं। आई डू नॉट लाइक दिस नॉइस, मैं इस
शोर को पसंद नहीं करता, said नईम। नईम ने कहा, प्लीज सेंड देम अवे, मेहरबानी करके इन्हें भगा दो। जमाल, या मेहरबानी करके इन्हें भगा दो, या मेहरबानी करके इन्हें दूर भेज दो। जमाल वेंट आउटसाइड, जमाल बाहर गया, एंड रिटर्न, और वापस आया, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, एंड सेड, और कहा, सर, दे हैव कम बिकॉज यू आर हियर, वो यहाँ आए हैं क्योंकि आप यहाँ हैं। यू आर दियर मास्टर, आप इनके आका है या आप इनके मालिक है। दे आर कोल्ड, उन्हें सर्दी लग रही है। दे वांट यू, वो आपसे चाहते हैं, टू गिव देम, कि आप उन्हें दे दे, वार्म ब्लैंकेट, गरम कंबल, यानी वो चाहते हैं कि आप उन्हें गरम कंबल दे दे। बट आई डिड नॉट ब्रिंग एनी ब्लैंकेट फ्रॉम द सिटी, लेकिन मैंने शहर से कोई कंबल नहीं लाए हैं, सेड नईम। नईम ने कहा, इन दैट केस, उस सूरत में, यू कैन गिव देम, आप उन्हें दे सकते हैं, सम मनी, कुछ रकम उन्हें दे सकते हैं, फॉर द ब्लैंकेट्स, किसके लिए, ब्लैंकेट्स के लिए, यानी कंबलों के लिए। दे विल गो टू द शॉप, वो दुकान को जाएंगे, एंड बाई ब्लैंकेट्स, और कंबल खरीदेंगे, विद द मनी, रकम के साथ। सेठ जमाल, जमाल ने कहा। नईम हैंडेड हिम 1,000 रुपी नोट, नईम ने उसे 1,000 रुपये का नोट थमाया, फॉर द जैकल्स, गिदड़ों के लिए। जमाल पुट द मनी इन हिज पॉकेट, जमाल ने ये रकम अपने जेब में रखी, एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर गया। ही थ्रेव सम स्टोन्स, उसने कुछ पत्थर फेंके, एट द जैकल्स, गिदड़ों पर। दे रेन अवे, वो भाग गए। नईम वॉज नाउ फीलिंग टायर्ड, नईम अभी थकावट महसूस कर रहा था। ही वेंट टू बेड, वो बिस्तर पर गया, एंड स्लेप्ट साउंडली दैट नाइट, और अच्छे तरीके से उस रात सो गया। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द जैकल्स केम अगेन, गीदड़ वापस आए, व्हेन नईम वॉज स्लीपिंग, जब नईम सो रहा था। ही वॉज डिस्टर्ब, वो परेशान हो गया, बाई द नॉइस, शोर से। ही कॉल्ड जमाल, उसने जमाल को पुकारा, एंड सेड, और बोला, और कहा, द जैकल्स आर हियर अगेन, गीदड़ वापस यहाँ आए हैं। आई कैन नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सकता, बिकॉज दे आर होलिंग लाउडली, क्योंकि वो ऊंचा ऊंचा चीख रहे हैं। गो आउट, गो आउट, बाहर जाएं, एंड टॉक टू देम, और उनसे बात करें। वाई हैव दे कम, वो क्यों आए हैं, बैक, वापस क्यों आए हैं वो, एंड आर मेकिंग सो मच नॉइस, और इतना शोर कर रहे हैं। यानी आप जाके उनसे पूछे कि वो वापस क्यों आए हैं। एक मर्तबा तो मैंने इनकी ज़रूरत पूरी की थी, अभी वो वापस क्यों आए और इतना शोर क्यों कर रहे हैं। जमाल वेंट आउट, जमाल बाहर गया, ऑफ द रूम, कमरे से, स्टेड दियर, वहाँ ठहरा रहा, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, एंड केम बैक अगेन, और वापस आया। देयर, वो, दे आर हंग्री सर, मालिक, वो भूखे हैं, सेठ जमाल, जमाल ने कहा। दे वांट सम फूड, वो कुछ खुराक चाहते हैं। दे आर नॉट कोल्ड, वो, उन्हें ठंड नहीं लगी है, बिकॉज यू गेव देम मनी, क्योंकि आपने उनको रकम दी थी, टू बाई ब्लैंकेट्स, कंबल खरीदने के लिए। दे आर आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू फॉर फूड, वो आपसे खुराक के बारे में पूछते हैं। बिकॉज यू आर दियर मास्टर, क्योंकि आप इनके मास्टर है, आप इनके मालिक है। आई हैव नो फूड, मेरे पास कोई खुराक नहीं है, टू गिव देम, कि मैं उनको दे सकूं, मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई खुराक नहीं है। दे बाई, क्या वो खरीद सकते हैं, फूड, खुराक को, फ्रॉम द शॉप्स, दुकानों से। टेक दिस 1,000 रुपीज, इन 1,000 रुपयों को ले लो, एंड टेल देम, और उन्हें बता दो, टू बाई फूड, के खुराक खरीदे। जमाल अगेन पुट दैट मनी इन हिज पॉकेट, जमाल ने फिर से वो रकम अपनी जेब में रखा। वेंट आउटसाइड, बाहर गया, एंड स्केयर द जैकल्स अवे, और गिदड़ों को डराया। द जैकल्स रेन अवे, गीदड़
भागे एंड नईम was able to sleep peacefully और नईम पुरअमन तरीके से सो गया. The next night, अगली रात, जमाल was in his master's room. जमाल अपने मालिक के कमरे में था. When they heard, जब उन्होंने सुना, the noise of jackals again, जब उन्होंने दोबारा गिदड़ों का शोर सुना. They were howling, वो चीख रहे थे. Around the house, घर के इर्द गिर्द. Listen to that noise, said नईम. नईम ने कहा, इस शोर को सुनो. These jackals are here again. ये गीदड़ वापस यहाँ आए हैं. I gave them, मैंने उन्हें दिया था. Money, रकम. For the blankets and food, मैंने उन्हें कंबलों और खुराक के लिए रकम दिया था. लेकिन वो यहाँ है, वो वापस यहाँ आए हैं. What do they want now? वो अभी क्या चाहते हैं? जमाल went outside, जमाल बाहर गया. He threw stones, उसने पत्थर फेंके. At the jackals, गीदड़ों पर. And they ran away, और वो भाग गए. When he came back, जब वो वापस आया. नईम asked, नईम ने पूछा, what did they want? वो क्या चाहते हैं? They did not want anything, sir. वो कुछ नहीं चाहते हैं मालिक. Replied जमाल, जमाल ने जवाब दिया. They had simply came to say thank you. वो सिर्फ thank you कहने आए थे. बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.